Hello everyone. Today we are about to do class 10th mathematics chapter 4 quadratic equations. So this is chapter 4 which is quadratic equations. Before starting this chapter, let us recall the previous chapter where we did quadratic polynomials. So let us write what is a quadratic polynomial. A quadratic polynomial is of the form ax square plus bx plus c such that a is not equal to 0. Now, when we write this polynomial, quadratic polynomial equal to 0, when we equate this polynomial to 0, we get a quadratic equation. Quadratic equation is when we equate this quadratic polynomial to 0 and the condition remains same. जब हम एक quadratic polynomial को equate करके 0 के साथ put करते हैं तो उसे quadratic equation कहा जाता है. Standard form of quadratic equation is when it is written in the decreasing order of its degrees. That is, first we write ax square. Here we have ax square. Then it is bx. Then the constant term is equal to 0. Again, condition is a is not equal to 0. So this is the standard form of the quadratic equation. So we learnt about quadratic polynomials. Quadratic polynomial क्या होते हैं? We learnt about quadratic equations. Quadratic equation क्या होती है और उसकी standard form. Now let us learn about how to find the solutions of this quadratic equation. So to find the solutions, we have various methods. We will be learning about them one by one. First is the factorization method. The second that we have is the quadratic formula. Then we have the completing the squares. So here today we will be learning about the solution of the quadratic equation by all the three methods. We have to note that the solutions of the quadratic equations are also known as roots of the equation or zeros of the equation. So the solution of the quadratic equation are also known as roots of the equation or zeros of the equation. Now let us try to solve a quadratic equation by the first method, that is factorization method.
So for this, let us consider an equation. Let it be 2x square plus 3x minus 5 is equal to 0. So this is the quadratic equation that we are about to take in order to solve it by factorization method. As you have already done in your previous classes, so these are the extreme numbers, and better see that the quadratic equation is in standard form, that is it is properly arranged. x square की power पहले, फिर x, फिर constant term. So 2 into 5, we can see that product of numbers is 2 into minus 5, that is minus 10, and the sum is plus 3. So minus 10 कैसे बनेगा? 1 into 10, 2 into 5 is 10. So we have only two options here. अब इसमें से हमने ये देखना है कि सम 3 कैसे आता है. इससे तो आएगा नहीं, so let us cancel this out. 3 इससे आएगा, so let us take this. So here we'll write 2x square, the extreme terms over here, and the product over here. This can be written as 5 and 2 are to be written, so plus 5x minus 2x. Okay, so plus 5x minus 2x gives plus 3. This is square here. Now we have to take something common from here. X can be taken common and 2x will be left, plus 5 will be taken common from here. Sorry, 5 will be left here, minus will be taken common from this, minus 1, 2x plus 5 will be left behind. Minus into plus is minus, minus into plus is minus. Be careful about your signs. Sign की गलती नहीं करनी आपने. So if we find these two same, so it means we are proceeding correctly. So let us write this over here, common part, and the remaining things over here. So here we have got the factors. Now these are known as the factors. In order to get the zeros, we have to solve this further. So 2x plus 5 is equal to 0. Now we have to equate both of those factors to zeros. X minus 1 is equal to 0. Here we'll get 2x is equal to plus 5 will go that side and become minus 5. 0 minus 5 is minus 5. 2 is being multiplied. इधर आके divide हो जाएगा. So we get x is equal to minus 5 by 2. Here we have minus 1 will go there and become plus 1. So these are the two zeros that we have, and these are known as also the roots of the quadratic equation. So this is how we have to do this by factorization method. एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसे. फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करेंगे, आप इनके फैक्टर्स बनाएंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट्स में. उसके लिए आप एक्सट्रीम टर्म्स को एक्सट्रीम्स पे लिख लीजिए. इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको यहाँ पे लिख लिया. इनके जो कांस्टेंट टर्म है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना. 2 into 5 10 आ जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा 10 आ गया, माइनस 10. और जो बीच का पार्ट है वो सम से आएगा. सम इज 3 है, सम 3 आ गया. तो आपने देखना 10 के फैक्टर बनाने पे 1 into 10 और 2 into 5 से 10 बनता है. बस ये दो ही फैक्टर्स आते हैं इसके. किसको प्लस या माइनस करके ये बीच वाला टर्म बनता है. तो 10 और 1 से तो कभी बनेगा नहीं, 2 और 5 से बनेगा, 5 minus 2 करके. तो हमने देखा 5x minus 2x, क्योंकि x इसके साथ लिखने हैं. ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया. अब इन दोनों में से हमने कुछ कॉमन लेना है. यहाँ पे हमने x कॉमन ले सका, और उसके बाद 2x रह गया प्लस 5 रह गया यहाँ से, क्योंकि x दोनों में से बाहर आ गया कॉमन. यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं हमें दिख रहा, तो हमने -1 कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस दोनों में है. तो यहाँ पे 2x रह गया, माइनस कॉमन ले लिया तो 5 प्लस रह गया.
+5 आ गया। अगर ये दोनों पार्ट आप देख रहे हो दोनों जो है फैक्टर सेम है तो इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। 2x + 5 ये कॉमन आ गया, x -1 जो बची हुई चीज़ है वो यहाँ पे रहेगी। तो इसके दो फैक्टर्स आ गए। फैक्टर से आगे हम जीरोस निकालने के लिए इनको हम =0 पुट कर देंगे। =0 पुट कर लिया तो +5 उस साइड जाके -5 हो गया। ये इधर मल्टीप्लाई होता है 2 इसके साथ आके डिवाइड हो गया। x =−5/2 एक 0 आ गया इसका। और इसी तरह x -1 = 0 था, -1 उस साइड जाके +1 हो गया और x = 1 दूसरा 0 आ गया जिसको हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो हमारे पास ये आंसर है x =−5/2 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम लर्न करेंगे अपना दूसरा मेथड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ दिस इज अ सेकंड मेथड, रूट्स of quadratic equation by using quadratic formula. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने वाले हम इसमें। सो लेट अस राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। We are going to use the same quadratic equation as we used for the first method, that is 2x² + 3x - 5. So this is the quadratic equation given to us. Here we are about to use the quadratic formula. So what is a quadratic formula? Before doing that, let us compare this. The standard form of the equation, that is ax² + bx + c = 0. जैसे कि मैंने पहले बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ये होती है जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं टर्म्स अपनी पावर के। So from here we get that a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to -5. c है -5। क्या करना है हमने इसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन से। यहाँ से आ जाएगा a 2, b 3 और c -5। c -5 आ गया। Now b² - 4ac ये आपका पार्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। b² - 4ac आपने ये फाइंड करना है। यहाँ से b की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है -5। 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 + 9 इज 49। अब देखो यहाँ पे 3 केसेस अराइज होते हैं। इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, डी। नाउ व्हाट इज डी? डी इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। अब मैंने बताया जैसे यहाँ पे 3 केसेस अराइज होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट, इफ d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 मीन्स b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 49 आ रही विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका क्या कंडीशन होगा? अगर ये इक्वल टू 0 है तो क्या कंडीशन होगी, और अगर ये लेस देन 0 है तो क्या कंडीशन होगी? If discriminant is greater than 0, then real and distinct roots exist. इसका मतलब जो रूट्स हैं वो रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। ठीक है, 2 अलग अलग रियल रूट्स आएंगी आपकी। अगर दूसरी कंडीशन हुई, इफ d is equal to 0,
तो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब अगर डी, ये जो डी की वैल्यू आई है आपकी, अगर ये इक्वल टू 0 आती तो रियल और इक्वल रूट्स, दो रूट्स निकलती, दोनों रियल होती और इक्वल होती। जैसे 4,4, 7,7, 10,10, जो भी हो रियल होती और इक्वल होती। तीसरी कंडीशन होती इफ डी इज लेस देन 0। डी लेस देन 0 का मतलब है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब कोई भी रियल रूट्स ना आती। तो हमारे पास ये 3 कंडीशंस थी। तो इस केस में हम देख रहे हैं 49 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब हमारा पहली कंडीशन अप्लाई होती है जहां पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट, मतलब दो अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा कोई भी इमेजिनरी टर्म्स हैं। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। आपने इसे सॉल्व करना है वैल्यूज b और a की यहां से यूज करके। जो हमारे पास ये माइनस आपका ऑलरेडी लगा हुआ फॉर्मूले वाला, आपने ये लगाना है। b की वैल्यू हम देखते हैं हमारे पास 3 गिवन है, 3 लिखेंगे प्लस रूट डी, डी हमारे पास 49 आया है, 49 लिखेंगे, 2a, a की वैल्यू है हमारे पास 2, माइनस 3 प्लस रूट 49 इज 7, 7 7 जा 49 होता है तो 7 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इज 4, माइनस 3 प्लस 7 विल बी 4 अपॉन 4, यह आ जाएगा हमारे पास 1, कटिंग होके 1 आ गया। इसी तरह हम यहाँ पे यूज करेंगे, सेम वैल्यूज आएंगी, बस माइनस साइन होगा इधर। -3 and -7 will be -10 upon 4, कटिंग करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, -5/2 आ गया। ये अल्फा है और ये बीटा है, तो हमारे पास फिर से दो वैल्यूज आई है अल्फा और बीटा की, 1 और -5/2। वन एंड -5/2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये हमारे पास आंसर है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। सेकेंड मेथड हमने यूज किया बाय यूजिंग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस मेथड के लिए भी हमने सेम अपना पुराना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि होता है ax² + bx + c, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो a b c निकालने के बाद हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। b की वैल्यू हमने यहां से डाली 3, b का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर हो गया, -4, a की वैल्यू 2 थी,
c की वैल्यू -5 यहाँ पे पुट कर दी, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 आ गया, 9 + 40 इज 49। 49 के बाद हमने देखना है कंडीशन कौन सी अप्लाई होती है। हमारे पास 3 यहाँ पे सिचुएशंस हो सकती है, या तो d ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या इक्वल टू 0, या लेस देन 0। ये जो d डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है या ग्रेटर हो सकती है, इक्वल हो सकती है, या लेस हो सकती है। अगर ये ग्रेटर होती तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, इसका मतलब 2 रियल रूट्स हमारे पास आते हैं अलग अलग। अगर d की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास 2 रियल और इक्वल रूट्स आते हैं, मीन्स जो रूट्स आएंगे वो दोनों की वैल्यू सेम होगी और वो दोनों रियल होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स हमारे पास नहीं आएगा। तो इसके हम रूट्स को कंसिडर कर लेते हैं अल्फा और बीटा। लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास निकलेगी इस फॉर्मूले से -b प्लस √d/2a, और बीटा की वैल्यू निकलेगी -b माइनस √d/2a। बस ये प्लस और ये माइनस का फर्क है। b और d और a की वैल्यू हम यहां से पुट कर लेंगे। हमारे पास a है, b है, और ये d की वैल्यू ये है हमारे पास। तो b की वैल्यू हमने -3 पुट करी, माइनस फॉर्मूले में था। b की वैल्यू हमारे पास ये 3 आ गई यहां से, d की वैल्यू हमारे पास 49 यहां से आई, और a की वैल्यू 2 यहां से आई। तो -3 प्लस √49 होता है 7, 2 × 2 इज 4, -3 प्लस 7 प्लस 4 आ गया, 4 और 4 कट गए, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह हमने यहाँ पे ये सारा करा पुट, बस यहाँ पे बीच में माइनस है, -3 और -7 -10 हो जाएंगे, नीचे 4 आएगा, 2 से कटिंग हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, -5/2 और 1। इस बार रूट सेम वही आया जो पुराने वाले में आया था। आप मेथड जो मर्जी यूज करें बट आपका आंसर सेम आएगा अगर आपने ठीक किया होगा। तो हमारे पास यहाँ पे भी इसका 1 and -5/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आ रहा है। अब हम सेम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने थर्ड मेथड से ही करेंगे, जो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स है। Now we are about to find the roots of the quadratic equation by the third method, that is by completing the squares. So we have this third method to find the solution of quadratic equation by completing the square. Solution of quadratic equation by completing the square. So for this we'll take the same quadratic equation that we were already using to find the solution by other methods. 2x² plus 3x minus 5. So this method is quite tricky. By completing the square, this method is quite tricky. You have to observe it very carefully. The first step here is always take the constant term to the right side. The first step is to take the so let us do it. -5 को उस तरफ ले जाएंगे, वो बन जाएगा +5. 0 + 5 is 5. Now this is your quadratic equation in this form. Now let us see what is the second method. In second method you have to make the first term, that is the x² term, unity. Okay, in order to make this unity we have to divide it by 2. इसके साथ अगर 2 है तो 2 के साथ डिवाइड कर देनी पूरी इक्वेशन, 4 है तो 4 के साथ डिवाइड कर दोगे, अगर x² के साथ 7 है तो 7 के साथ डिवाइड कर दोगे,
-9 है तो -9 के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करनी है। और मोटिव इज टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, इसको यूनिटी बनाना है आपने। यूनिटी मीन्स 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए जो भी है आपके पास यहाँ पे, उसके साथ पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दोगे। एक बार करके दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे हमारे पास 2 था तो सबको 2 से डिवाइड कर दो। आपने ये जो स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ वो नहीं लिखने, आपको समझाने के लिए लिखे जा रहे हैं। आपने सिर्फ या जो इक्वेशन वाला पार्ट है सिर्फ वो करना है, स्टेप्स आपने ये वाले नहीं लिखने हैं। 2 के साथ 2 डिवाइड होगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, कहीं पे भी कटिंग होती है ऊपर नीचे तो कर लो। सो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x is equal to 5/2. Now let us move to the third step. In third step we have to take the square of half of second term, that is the coefficient of x. इसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर करना है और वो दोनों तरफ ऐड कर देना है। What we have to do? Add the square of half. इसका पहले हाफ करना है, 3/2 है, इसका हाफ हो जाएगा 3/4 और उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके दोनों तरफ आपने ऐड करना है इक्वेशन के। एट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट स्क्वायर ऑफ हाफ, हाफ का स्क्वायर उसको ऐड करना है दोनों तरफ। Now let us see. अब देखो 3/2x है आपके पास, 3/2x का आपने ऐड करना है। यहाँ पे 3/2 का हाफ करेंगे, देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। हाफ ऑफ 3/2, हाफ ऑफ 3/2 हो जाएगा हाफ ऑफ 3/2। 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, सो 3/4 हो जाएगा। और इसका हमने हाफ ऑफ कर दिया, x का कोफिशिएंट का हाफ कर दिया और इसका स्क्वायर करना है और उसको हमने ऐड कर दिया। इस साइड भी ऐड करा और राइट हैंड साइड भी ऐड करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। ये आपका रफ वर्क था। दोबारा से समझा दूं, आपने x के जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है। 3/2 है हमारे पास, 3/2 का हाफ करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 जो आएगा उसका स्क्वायर करना है और लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करना है आपने और राइट हैंड साइड में भी ऐड करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आपका 5th स्टेप है सॉल्व इट। ठीक है, आपने सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। सॉल्व कर लेते हैं अब इसे। अब देखो ये आपके पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसकी फॉर्म बन रही है आपके पास। तो इसको आप लिख दोगे इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में हम लिखेंगे ये आपके पास बन जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16। So we are left with this one now. As I already told you, this is a square plus b square plus 2ab. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कैसे बनाइए। ये देखिए आपके पास a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है
अगर आप यहाँ पे 2a इंटू बी लिखते हो, देखिए 2, इसको मैं प्रॉपर इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अगर हम इसको पूरा लिखते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास, हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये रह जा रहे हैं 3/2 यहाँ पे रह जा रहे हैं और x रह जा रहे हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की ही फॉर्म है। सो वी कैन कंपेयर दिस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, which can be written to a plus b whole square. So we'll write this x plus 3/4 whole square, x plus 3/4 whole square, and right hand side is 5/2 and 9/16. Now let us solve the right hand side, taking LCM 16. 2 into 8 is 16, 8 5s are 40, 16 into 1 is 16, 1 into 9 is 9, 48 plus 9 is 49 upon 16. Let us write this over here. अब देखो, इसका जो स्क्वायर है जब राइट साइड जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे आएगा, यहाँ का जो स्क्वायर है इधर आएगा, तो ये रूट बन जाएगा। नाउ रूट 49 इज 7 and root 16 is 4. X plus 3/4 is equal to 7/4. X इस साइड आएगा, x प्लस 3/4 इस साइड आएगा, माइनस 3/4 बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, क्योंकि रूट से जब बाहर निकलता है टर्म तो प्लस और माइनस दो केसेस होते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों केसेस के साथ अलग अलग एक्ट करेगा। यहाँ पे आके अगर प्लस 7/4 के साथ करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा माइनस 3/4 हो जाएगा, और अगर माइनस 7/4 के साथ एक्ट करेगा तो ये माइनस 3/4 ऐसे हो जाएगा। अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है, डिनोमिनेटर सेम है, 7 - 3 इज 4, 4/4 विच इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 आ गई। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, -7 and -3 इज -10/4। कटिंग करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, दिस इज इक्वल टू -5/2। तो हमने देखा कि जीरोस हमारे सेम ही आ रहे दोनों केसेस में। सो वी हैव द जीरोस आर zeros of equation are x is equal to 1, -5/2. So we use any of the methods given, the answer will be same. एक बार दोबारा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हमारे पास वही पुरानी वाली इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 3x - 5 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, ये जो कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म राइट साइड ले गए, -5 इस साइड जाके +5 बन गया, 0 + 5 इज 5। उसके बाद हमने जो x² वाली टर्म है इसको यूनिटी बनाना है, मतलब 1 बनाना है, तो इसके साथ जो भी होगा आपने पूरी इक्वेशन को उसके साथ डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 2 था तो मैंने पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर दिया, जो कांस्टेंट टर्म है उन सबके कांस्टेंट टर्म को 2 के साथ डिवाइड किया, 2 2 कट हो गया, यहाँ पे 1x², 3/2x इज इक्वल टू 5/2 आ गया। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप करना है, जो हमारा x का टर्म है उसका हाफ और उसका स्क्वायर ऐड करना है दोनों तरफ। तो 3/2 का हाफ हो गया 3/4, मैंने यहाँ पे करके दिखाया, 3/2 का हाफ 3/4 हो गया, 3/4 का स्क्वायर मैंने इस साइड भी ऐड किया टर्म के, और इस साइड भी ऐड किया 3/4 का स्क्वायर। उसके बाद ये हमारा बन गया a² + b² + 2ab। उसके बाद हमारे पास ये आ गया, मैंने यहाँ पे करके दिखाया कि a² + b² + 2ab ये कैसे बना। फिर हम इसको सीधा लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 16, 2 8 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, 16 1 ज़ा 16, 9 1 ज़ा 9, 40 + 9 is 49 upon 16,
ये स्क्वायर था, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे रूट लग जाएगा। उसके बाद रूट 49 होता है 7, रूट 16 होता है 4, रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस लग जाएगा, क्योंकि प्लस में भी टर्म हो सकती है, माइनस में भी टर्म हो सकती है। और x प्लस 3/4 इधर आके माइनस 3/4 हुआ। एक बार प्लस 7/4 के साथ हमने इसे किया और एक बार माइनस 7/4 के साथ किया। तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास जो वैल्यूज आ रही थी, x इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1 आ रहा था और यहाँ पे माइनस 5/2 आ रहा था। तो जीरोस ऑफ द इक्वेशन आर x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 5/2। तो इसी तरह हमने ये तीनों मेथड किए। आप इन्हीं तीनों मेथड को यूज कर सकते हो पूरे चैप्टर में, और ये इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट था। थैंक यू सो मच।